Okay, Shikhar Soman, good morning and welcome to the class. Without any delay, let's start this session. Ritika, good morning. Just 10 seconds more. Let others join. Rashmi, good morning. Krishna, good morning. Okay, so welcome back to the session. We are going to do the group concept of organizational behavior. This is part 4. I hope this slide is visible. So we are going to we are going to study what do you mean by group, what is group dynamics, what is team, what are group teams, what are the different properties of the group, what are group norms, what is group cohesiveness, what is group think, how the group phenomena or people working in the group, how they affect, and why the study of the group is important to study or understand the organizational behavior. So, first and foremost thing, what do you mean by a group? When I simple say in the simple terms, it's a collection of individual, right? But does it mean only a collection? No, it's a collection of the individuals who are in contact with each other frequently. They interact on frequent basis. They have a common feeling. They have a common goal. They have something in common, mutual, which they want to achieve as in group. This is called as the group. So what is group? Collection of the individual or two or more individuals who interact with each other, interdependent on each other, but they have come together in order to achieve something. इसे group कहते हैं. What is group dynamics? The term dynamic means something which is ever changing, something which is not constant. So dynamic is defined. The definition here is important. Please by heart it. Group dynamic is a social process. It is a social process means it's an interaction. It's a process of interaction where people of this group interact with each other face to face. This group dynamic is usually associated with the small group. Why? In big group, it's not easy to interact on daily basis frequently with everyone. So group dynamic is what? A social process through which a person interact with another person face to face in the setting of small group. The group dynamic is majorly focused on teamwork. Why they interact? Obviously to achieve certain common goal. So they have the objective to work in a team, share some ideas, innovate something in order to achieve the given task or the goal. This is group dynamic. First line, very important. Why there is need of the group? Again, you may have the question in the exam, and this has been already being asked once, that group ki zarurat kya? Why? One and foremost thing is, an individual working alone may not have that many ideas as compared to the number of the people working together. It brings the team spirit within the organization, within the members of the people. Team spirit is very important to keep the things united. It introduces the industrial democracy. Democracy means giving everyone a chance to say their point. Being democratic is very important if you want to have profitability. You need to have area, a section, time where everyone is ready or everyone is allowed to speak. Monitor work, make work life more lively. मैं अकेले काम कर रही हूँ, I'm working alone. It's not that interesting because I'm alone. When there are two or more people interacting, they talk to each other, they laugh, they formally, informally interact with each other, they come up with new ideas, so it make more lively.
make management involvement more effective. Group can perform bigger tasks compared to a single individual. Number of ideas, number of the minds, the problem would be resolved. Group can make better decisions. Discussions, suggestions, and communications come up when there is a group. People are satisfied when they are into the group where they feel attached, more creative, more innovative. They are self-explanatory. That's why I have not explained in detail. Now, this is very, very important. Number of times the question has been asked. There can be different types of group: functional or formal groups, informal group, task group. Task group is a kind of an functional or formal group. This is temporary functional group. Functional group or formal groups are permanent in nature. Informal groups are usually temporary in nature. Clear? Now, within informal groups, we have interest group, membership of same profession, friendship group, reference group. Under functional, we have command group. We'll study this also. So there are different kind of the groups. Let's understand them one by one. What is functional or formal group? As the name itself is suggesting, formal. Within the organization, a deliberately created group in order to achieve certain goals which are identified by the management is called as the functional group or formal group. This group are defined by the organization and they have a proper hierarchy within the organizational structure. Let's say HR department. HR department, formal group created in order to fulfill HR requirement. These groups, formal groups, are concerned with making the coordination of the activities with all other work activities going on in the organization. Marketing department, HR department, IT department, they need to coordinate their activities together. The relationship between these groups are identified or defined by proper rules, norms of behavior. They have rules, they have norms of behavior, and that this is what you have to do, this is what is not to do, this is what your responsibility is, this is what you're supposed to do. That is formal. Everything is being deliberately created. They are permanent in nature. They can be of any large size, big size as well. It's not always small. They can be any number of size and big, as large as they can be. Here, the communication in this group is only in a one direction, top to bottom, or rather there can be bottom to top only, but bottom to top as well, but there would be formal communication, written communication, rigidity is there. This is formal. Informal groups are not deliberately created. Neither they are formally structured. Neither they have their norms, rules. Neither they are something which are formed to achieve certain goals. Informal groups are created spontaneously. The people in the informal groups, they form this group to satisfy their social and psychological need. Friendship group. Why friend group is formed? Somewhere I find that person similar to me. Somewhere I am having same interest. So informal group is more related to what? Personal relationship and agreement of the group member. They are spontaneous. They have the mutual interest, and communication is all over the direction. There is no such formal communication. Task group. These are temporary in nature. Task group are formal groups, but temporary formal groups which are established to achieve a specific task. एक काम के लिए आपको बनाया गया है, वो task पूरा होगा, the group will be dispersed. Command group. A group within the organization chart which shows hierarchical relationship of superior and subordinate. Command बोल रहे ना, जहां पे आपको रिलेशनशिप दिखेगा, फॉर्मल रिलेशनशिप होगा और सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का रिलेशनशिप शो हो रहा है. That is, it will be showing a group where there would be senior, where there would be junior. This is called as command group. A command group is relatively permanent in nature. Formal group
with the functional reporting relationship and usually included in the organization chart. ये आपको याद रखना है. Command group shows formal relationship, reporting relationship. Affinity group. What is affinity group? These are the groups or the collection of the employees at the same level in the organization. Same level पे होते हैं. They come together, meet together on regular basis, share the information on regular basis in order to capture more opportunities and solve the problem. जैसे दो HR रिक्रूटर्स अलग अलग टीम के ही क्यों ना हो, एक सेल्स में हो नॉन सेल्स में, बट दोनों रिक्रूटर्स हैं, दोनों सेम लेवल पे, they will come together to find out if there is any problem related to recruitment, if there are better opportunities related to recruitment. This kind of groups are called as affinity. The term you have to remember here is employees from the same level and they meet regular basis for more opportunities and solve the problem. So see, this is the question. Which of the following describe the command group? Command group क्या है? Formal group that consists of manager and their subordinate. What is this? Answer in the comment. A group established to solve a particular problem. क्या होगा? What is option number A? What is option number A? रश्मि, स्पॉन्टेनियस ग्रुप जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होते हैं. रितिका, यस यस रितिका. रितिका, टास्क ग्रुप. हाँ, पहला क्या है? टास्क ग्रुप. देन दूसरा बताएंगे, यूनिट एस्टैब्लिश्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द स्पेसिफिक टास्क. सेकंड क्या है? सेकेंड इज ऑल्सो द टास्क. सेकेंड इज ऑल्सो द टास्क. अरे स्पेसिफिक टास्क लिखा है ना. बोथ ऑफ देम आर टास्क ग्रुप. फॉर्मल तो है ही, दे आर फॉर्मल. ठीक है. अ यूनिट एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क. यूनिट कह रहे हैं ना, फॉर्मल तो है ही, वो टास्क भी है. थर्ड वन, ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीमेट फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन. थर्ड वन, intimate face to face association and cooperation. Third one, intimate face to face association and cooperation. Very good. Formal या functional group. Third one is your functional. Informal नहीं है. ठीक है. face to face है, cooperation है. ठीक है. informal क्यों? क्यों फॉर्मल ग्रुप में एसोसिएशन नहीं होता है क्या? फॉर्मल हुआ ना, जो रेगुलरली मीट होंगे, कोऑपरेशन होगा. ठीक है. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नाउ दिस इज व्हाट इट इज. फॉर्मल में कमांड ग्रुप आता है, टास्क ग्रुप आता है, एफिनिटी. दीज आर द न्यू ग्रुप, दीज आर द फॉर्मल. प्लीज बाय हार्ट इट. यहाँ पे जो लिखे हैं ना कैरेक्टरिस्टिक, कमांड ग्रुप क्यों क्रिएट होता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, दे यूजुअली क्रिएट कमांड ग्रुप. कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप. टास्क में सर्च कमिटी फॉर अ न्यू स्कूल सुपरिटेंडेंट, टास्क फोर्स फॉर द न्यू प्रोडक्ट क्वालिटी. नाउ अगर आपको एग्जाम में ये डाल दिया कि इन केस ऑफ सर्च कमिटी फॉर अ न्यू स्कूल, दिस विल बी व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप? टास्क ग्रुप. ठीक है. एफिनिटी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज काइंड ऑफ विच ग्रुप? इट इज एफिनिटी. इनफॉर्मल फ्रेंडशिप ग्रुप क्या होता है? you people are friends. when you become friend, when you have some activities, some interest same. ठीक है. दैट इज फ्रेंड्स हु हैव मेन एक्टिविटीज टुगेदर, खेलना कूदना. व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज लाइक आई एम इंटरेस्टेड इनटू सर्टेन थिंग. मेरा इंटरेस्ट वहां फुलफिल हो रहा है. फॉलोइंग ग्रुप, वुमेन्स नेटवर्क. तो वुमेन्स का पर्टिकुलरली जैसे किटी होती है या वुमेन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, तो उसमें क्या होता है? मतलब अब सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक तरीके से इनफॉर्मल है, अब फॉर्मल नेचर में हो गया है. लेकिन पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, जहां वुमेन्स अपने आप कलेक्टिवली आती थी, वहां पे उनका मेन पर्पस इंटरेस्ट, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना होता था. ठीक है. सो इंटरेस्ट ग्रुप्स. क्लियर? सो व्हाट इज इंटरेस्ट ग्रुप? बाय हार्ट दिस डेफिनेशन. दिस इज योर PYQ आस्क्ड इन एग्जाम.
they are relatively temporary, informal, organized around a common activity or interest of its member. एक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ग्रुप बनता है. मेंबरशिप, यू बिलोंग टू सर्टन प्रोफेशन, आपको क्लब की मेंबरशिप मिल गई, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोफेशन you are part of it, because you are the part of an academy, you will be part of this group. That is membership group. Friendship समझा दिया. Reference group, when you join certain groups voluntarily in order to have your ideas, or where ऐसा ग्रुप, जैसे कि आपके घर में किसी की शादी हो रही है, योर फादर इज आस्किंग, किसी से आपके फादर ने पूछा कि कोई ऐसा ग्रुप है क्या जहाँ पे प्रस्पेक्टिव लड़के या लड़कियां, ब्राइड या ग्रूम का डिटेल शेयर होता है. तो ऐसे इसमें क्या होता है कि आपके फादर ने किसी से पूछा और आपके फादर को आप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड ने बताया कि ये एक ग्रुप है, मैट्रिमनी का ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लो. तो आपके फादर के फ्रेंड में ने जो आपके उन दोनों की आइडियाज, वैल्यूज, बिलीफ सेम है, उन्होंने जो रेफरेंस दिया उसके बेसिस पे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं. सो बेसिकली रेफरेंस ग्रुप इज इंडिविजुअल हैव देयर आइडियाज, वैल्यूज एंड बिलीफ similar to that of the group. They join this group voluntarily. Here social validation, कि हाँ सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि ऐसे ही वैल्यू बिलीफ होनी चाहिए, तब जाके आप उनको ज्वाइन करते हो. दैट इज योर रेफरेंस ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन अगर कह रहा है, जैसे ये एडवर्टीजमेंट होते हैं, शाहरुख खान डूइंग एन एडवर्टीजमेंट फॉर बायजूस, एनी अदर सुपरस्टार डूइंग द एडवर्टीजमेंट फॉर एनी कंपनी, they are the people, those हम बिलीव करते हैं अमिताभ बच्चन है, he has his own values, beliefs, his own thinking जो हमसे मैच करती है, जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, वो अगर हमें रेफरेंस कर रहा है, हम उससे जाके ज्वाइन करते हैं. दैट इज रेफरेंस ग्रुप. So see, this is the question. A group consisting of member working together to attain specific objective with each one is concerned. Each यहाँ पे ये term आ गया, मतलब each one is concerned. हर एक बात याद रखेंगे, इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर हर एक पर्सन का इंटरेस्ट होता है. सो ईच वन इज कंसर्न, यहाँ कलेक्टिव की बात नहीं हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ग्रुप. अब हम आते हैं क्लिंग्स पे. व्हाट इज क्लिंग्स? दे आर टाइप ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स. व्हाट आर दे? दे आर क्लिंग्स आर इनफॉर्मल ग्रुप. बट ये वो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, विमल केसरी, यस, स्मॉल ग्रुप होते हैं, और ये फॉर्मल यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉइज जब एक इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं. जैसे मेरे एचआर डिपार्टमेंट में कुछ एचआर लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी अच्छी बनती है, या इनफॉर्मली हम लोग इनफॉर्मली ही बात करते हैं, काम की बात वहां नहीं होती है, बस कर लिया, बिकॉज उस ग्रुप में रहेंगे तो कंपनी के बारे में पता चलता रहेगा, नए अपॉर्चुनिटीज. वो लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिया, जहां पे जैसे हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर में हमारे सारे एचआर हैं जो हम लोग साथ में काम करते थे. ठीक है, जो हमारी काम करते थे, नए एचआर जो एड ऑन हो रहे हैं उसके अंदर, जो भी आते रहते हैं उस ग्रुप में एड ऑन हो जाते हैं. तो ये जो स्पेसिफिक एचआर का ग्रुप बना है ना, इसे हम क्लिंग कहेंगे. वैसे तो व्हाट्सएप का ग्रुप बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल है, इसे हम क्लिंग कहेंगे. अ ग्रुप विच इज कंसिस्टिंग ऑफ कलीग्स who are commonly associated with each other, having the same norms and status. वो भी रिक्रूटर था, हम भी रिक्रूटर हैं, हम एचआर के थे, राइट? सो दे ऑल आर कलीग्स, दे फॉर्म अ ग्रुप which is small, limited to 5 or 6 member. Objective of this group is to recognize each other and exchange the information related to it. तो इस ग्रुप में क्या होता है, जैसे हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या करते हैं, पहले ये था हम सारे एचआर जो हमारा ग्रुप है उसमें 8 से 10 लोग हैं, हम लोग सभी एक साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में थे. अब क्या हुआ है, सभी सेपरेट हो गए, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे काम कर रहे हैं. तो अब क्या होता है कि अगर लेट्स से ए है, ए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, अब उसके कंपनी में ओपनिंग है, ही विल शेयर दैट इन द ग्रुप.
कि भैया ये ओपनिंग है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो दे दो, या फिर आपको किसी की रिक्वायरमेंट है तो ले लो. सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लिंक इज, टू रिकॉग्नाइज ईच अदर एंड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन विच इज ऑफ म्यूचुअल इंपॉर्टेंस. समझ में आ गया? जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, स्कूल्स एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, उस ग्रुप में पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो ग्रुप क्यों क्रिएट होता है कि स्कूल की इंफॉर्मेशन जो आएगी वो इसमें शेयर होती रहेगी. हमारा कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता है, पर्सनल उन पेरेंट्स से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है आज तक का, लेकिन हाँ वहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है जस्ट बिकॉज सेम ऑर्गेनाइजेशन से. अब M. Delton has defined 3 types of the clinks: vertical clink, horizontal clink, random or mixed clink, sub clinks हम आगे पढ़ेंगे. What is vertical clink? In the same department, people working in the same department drawing a membership जिसमें सीनियर जूनियर वर्टिकल यानी सीनियर जूनियर सबॉर्डिनेट सुपरवाइजर ये सब लोग हैं, इसे हम कहेंगे वर्टिकल क्लिंक. जैसे आपने हमारा जब हम टाइम्स ऑफ इंडिया में थे तो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें हमारे बॉस भी हैं, हमारे जूनियर भी हैं, तो वो वर्टिकल क्लिंक हो गया जहां सबॉर्डिनेट भी हैं, जूनियर भी हैं, और ये अक्रॉस द हायरार्किकल लाइन यानी टॉप टू बॉटम होता है. द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज यूजुअली टू फिल द गैप ऑफ एबिलिटीज, यानी वो सीनियर जो अपने जूनियर्स पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कई बार ऐसा होता है कि नए नए नॉलेज के साथ में नए नए जूनियर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते जा रहे हैं, और जो सीनियर हैं अब वो उनकी नॉलेज एब्सोल्यूट हो गई, उन्होंने जो पढ़ा और नए बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी नॉलेज थोड़ी अपग्रेडेड है, नया है. तो कई बार सीनियर्स लोग ये ग्रुप को इंटेंशनली क्रिएट करते हैं कि मुझे मेरे सबॉर्डिनेट से कुछ सीखने को मिलेगा. दिस इज वर्टिकल क्लिंक. हॉरिजॉन्टल, इन द सेम डिपार्टमेंट सेम रैंक, मोर और लेस सेम रैंक, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा फर्क होगा. जैसे एचआर रिक्रूटर्स है तो सारे एचआर रिक्रूटर्स का ही बनेगा, कोई बॉस नहीं आएगा. दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल. द पर्पस ऑफ दिस इज यू कैन से टू हेल्प ईच अदर. ठीक है, सेम रैंक के होते हैं, सेम एरिया में काम करते हैं, कॉमन उनमें चीज होती है कि वो सेम रैंक पे सेम एरिया पे और एक दूसरे को हेल्प करने के लिए. रैंडम और मिक्स्ड, अब इसके अंदर में क्या होता है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट, अब मैं इसके पहले जो हमने दो पढ़े हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दे वेर ऑफ ऑलमोस्ट सेम डिपार्टमेंट. रैंडम एंड मिक्स्ड इज people from different rank, different department, different location, but belonging to same organization. एक ऑर्गेनाइजेशन एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है, यहाँ के लोग भी इस ग्रुप में बन गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी लोग इसमें आ गए. द पर्पस ऑफ दिस ग्रुप इज टू हैव द कॉमन पर्पस, सेम एक ही पर्पस को फुलफिल करना. ठीक है, अब कई बार ऐसे हो सकता है एक लोकेलिटी बस से ट्रैवल कर रहे हैं, सीनियर है जूनियर है, एक दूसरे डिपार्टमेंट में है, सिंस वो एक ही एरिया से ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया. आई विल गिव यू दिस विथ एन कार पुलिंग ऑप्शन. जब ऑर्गेनाइजेशंस में कार पुलिंग चला था तब ये कहा गया था कि नॉर्थ एरिया में रहने वाले जितने लोग हैं वो इस रूट से कार पुलिंग कर सकते. तो जरूरी नहीं है नॉर्थ एरिया में सब एक ही डिपार्टमेंट के होंगे, सभी एक ही रैंक के होंगे, कोई किसी डिपार्टमेंट का, कोई किसी रैंक का, कोई किसी फंक्शन में. सो दिस पीपल, इन्होंने क्या कारपूल कर रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, कब गाड़ी आ रही है कब नहीं है, इसके लिए उन्होंने ग्रुप क्रिएट कर लिया. सो दैट इज रैंडम और द मिक्स्ड क्लिक. 3 चीजें समझ में आ गई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रैंडम और मिक्स्ड. Is this clear to everyone? Moving to subclinks. What is subclinks? I will explain this with an example. क्या होता है ना, let's say this is an organization. We at Times of India, we used to have a
मंथली लंच, हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है, हमारी जो एचओडी थी या हैं, शी यूज टू ऑर्गेनाइज डिनर फॉर एचआर, कंप्लीट एचआर डिपार्टमेंट, जिसको कंपनी स्पॉन्सर करती थी। लेकिन वी एज एन एम्प्लॉय वी वर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हम तो पार्ट थे ही। अब इस डिनर में हमारी जो एचओडी थे वो कहती थी, शी यूज टू से, यू एज एन एम्प्लॉय, आप तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पार्ट हो, कोई भी पर्सन, ही शी, यू मे कॉल योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, अंकल, आंट, जिसको लगता है आप उसको डिनर पे ले आओ। दिस इज कॉल्ड एज सब क्लिंग्स, जहां हम जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, योर हस्बैंड, वाइफ, जिसको लगता है आपको, उसको आप इस डिनर में लेके आओ। तो अ ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन as well as the outsiders, but these outsiders are given or recognized by the members of this group only. जैसे कि आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप क्यों बनाया? दैट हम लोग सोशल सर्विस करना चाहते हैं। तो जब हम सोशल सर्विस करना चाहते हैं, हम 2-4 लोगों को जानते हैं, उसमें से एक पर्सन ए है, वो कभी कहीं पे फंक्शन में गया होगा, उसको एक पर्सन से इसने इंटरेक्ट किया और उसको पता चला वो भी सोशल सर्विस में, तो वो क्या करेगा, उस आउटसाइडर को अपने ग्रुप में ऐड ऑन कर लेगा, बिकॉज दे हैव दी समवेयर सेम थिंग। इसे कहते हैं सब क्लिंग्स। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया सब क्लिंग्स क्या है? राइट, चलो, दिस इज द क्वेश्चन। Horizontal, vertical, random cling are the examples of informal group. ठीक है? Now, Sayles classification or LR Sayles have given 4 kinds of organizations: empathetic, erratic, strategic, conservative. What is empathetic? Empathy सुना है आपने? Empathy, sympathy, empathy, and so on, right? Apathetic groups are relatively characterized with the few grievances and they have less pressure tactics. Means ऐसा ग्रुप जहां पे लीडरशिप नहीं है, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जहां लीडरशिप एब्सेंट है, कोई प्रेशर अवेलेबल नहीं है, और यहाँ जो वर्कर्स और रादर जो मेंबर्स हैं, दे आर लो स्किल्ड, लो पेड members, low skilled, low paid. Also, these members are not who have the power, they don't have unity. बने हैं, ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं, उनको कोई ग्रीवियंस नहीं एक दूसरे से, they are the part of the group, they have no clear defined leadership. It's like आज जैसे हमारे इंडिया में ट्रेड यूनियन है, so trade unions are like, they don't have clear leadership, they are usually dependent on political parties, so unity in our trade unions are less. So those groups where the employees are relatively low paid, low skilled, lack the unity, hardly have any power, any pressure tactics, this of kind of the group are called as the apathetic groups. पहली लाइन आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, that which group is categorized by relatively low grievances and hardly ever uses pressure tactics. Erratic groups, this kind of the group are easily inflamed, भड़क जाना, inflamed यानी किसी ने आग लगाई और वो भड़क गए, किसी ने आपको अच्छा बोला तो आप उनके साइड से हो गए, किसी ने आपके बारे में बुरा बोला आप उनके अगेंस्ट हो गए। easily inflamed, easily pacified, they don't have the lack or they lack the consistency in their behavior. कुछ पता नहीं आज क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं, कल उसने बोला मेरे साइड से आ जाओ, कल उसने बोला मेरे साइड से आ जाओ, that is lack of consistency. They are antagonism towards the management. Antagonism, दो तरह के बिहेवियर हो जाते हैं इनके, कि कभी वो अपोजिट जा रहे हैं मैनेजर के या अगेंस्ट, समटाइम दे आर कोऑपरेटिव, ठीक है। Here a active member of the group usually becomes a leader, जो बहुत एक्टिव है वो लीडर बन जाता है,
द ग्रुप कंसिस्ट और द मेंबर हु आर सेमी स्किल्ड, ये क्या है, लो स्किल्ड, ये है सेमी स्किल्ड, ठीक है, दोज हु परफॉर्म सर्टेन वर्क विद द इंटरेक्शन, they have considerable unity but very difficult to predict the behavior. this actually this classification is on the basis of pressure tactics, ठीक है, कि कैसे प्रेशर अप्लाई होता है या लीडरशिप कैसे डिफाइन होती है ग्रुप में. तो इरेटिक ग्रुप में क्या है, आप बता नहीं सकते कि पर्सन का बिहेवियर क्या है, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, इजीली भड़क जाते हैं, इजीली शांत हो जाएंगे, कभी कोऑपरेटिव कभी एंटागोनिज्म. स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स, this kind of the group are strategically able to put the pressure on the management. ये बनते ही इसलिए हैं, ये बनते ही इसलिए हैं अपनी नीड्स को, अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए. These groups are highly united. They are actively participative in the union activity. These people are antagonism in nature against the management. You can say a kind of militant behavior, right? This kind of people are generally performing technologically independent jobs. इनकी जॉब अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है. They are highly qualified, they are strategic in nature, they are ready to put the pressure on the management. तो अगर जैसे कोई एक let's say accountants हैं या HR हैं या मार्केटिंग लोग हैं, ये हाईली यूनाइटेड होते हैं, ये यूनाइट होंगे और हाईली यूनियन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं टू पुट द प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट. कंजर्वेटिव ग्रुप्स, these are professionals and highly skilled employee in a plant. They are found at higher level, जो higher level पे होते हैं, जैसे टॉप एग्जीक्यूटिव. They are professionals, ठीक है, highly skilled, higher level. They have self confidence, they know their work, they work by themselves, ठीक है. And these people are very strong, very stable among the informal. समझ में आ गया. कंजर्वेटिव ग्रुप बहुत प्रोफेशनल टॉप लेवल के लोगों का ग्रुप यानी कंजर्वेटिव ग्रुप. These are the 4 types of the group basis of pressure tactics. Is this clear to everyone? Shall we move ahead? ठीक है. नहीं, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेंगे राजशेखर. स्ट्रैटेजिक यहाँ पे वो स्ट्रैटेजिकली कोई प्रेशर कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीम और ग्रुप. टीम में क्या फर्क है, ग्रुप, जब हम वर्क ग्रुप की बात करते हैं, वर्क टीम की बात करते हैं, एक ग्रुप है और एक टीम है, दोनों में फर्क क्या है. पहली चीज, जो ग्रुप होता है ना, इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं या जो ग्रुप बना है, पर्पस इस ग्रुप का होता है कि आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करना और हर एक इंडिविजुअल अपने रिजल्ट के लिए खुद अकाउंटेबल होगा. ये ग्रुप की बात होती है. जैसे आपने टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन किया, तो ऐसा नहीं है ना कि वो सामने वाले उसने भी ज्वाइन किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको हेल्प करे. नहीं, इट्स नॉट हिज रिस्पॉन्स. यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल इन द ग्रुप. ये वर्क ग्रुप होते हैं जहां इंडिविजुअल अकाउंटेबल होता है, इंडिविजुअल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इनके जो स्किल्स होते हैं वो अलग होते हैं एक दूसरे से. दे आर रैंडम और वैरिड. लेकिन जो टीम होती है, ये टीम एफर्ट बनाने के लिए या स्पेसिफिक टास्क, दे आर फॉर्म टू अचीव सर्टेन टास्क. सो दिस टीम are actually responsible for collective performance. Member of the team are dependent on each other. Their interest is mutual, their accountability is mutual, and their skills are complementary to each other. अलग अलग नहीं, टीम है ना तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, इसको आप याद रखेंगे. Work group, the group interact primarily to share information, to make decisions, to help each group member perform within his or her area of responsibility. Team, a group whose individual efforts result in performance that is greater than the sum of the individual output. आपके individual effort मिलकर टीम का आउटपुट लेके आएगी rather than आपके अपने खुद के एक individual performance, right? So goal of the work group is sharing the information, here collective performance,
synergy means output, they are neutral, कोई फर्क नहीं, मतलब they are like they are own responsible for themselves, here positive. Accountability is individual, here individual and mutual. Skills are random and varied, complementary to each other. Is this clear? The difference between this is your PYQ, ये पूछा भी गया एग्जाम में. चलो आगे बढ़ते. Now there are different kinds of teams. Let's understand them. Problem solving teams. A group which consists of 5 to 12 employees belonging to the same department. Their main purpose is to solve the problem by increasing the quality, efficiency of the team. They develop the solutions to the work related problem. इनका काम केवल और केवल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है. They are finding the solutions to the problem. Quality circles are voluntarily created group of 6 to 12 people of the same department. The purpose, and they are working into the same area, एक ही area में काम करते हैं. The purpose of this quality circle is to improve the quality of their work. Quality पे focus होता है. Self managed group, self managing, self directed work team, या इसे हम autonomous work team भी कहते हैं. 8 to 10 members, they are self managed, means highly qualified. They are well trained, well selected, empowered employees, means they have the power to make their own decisions. They have the ability to direct their own work. They make their own decision by themselves. There is no supervision. They are responsible to achieve this specific task or mission by their self effort, self direction. That is self managed work, self managing team, and directed work team. Cross function. People with the same hierarchy but different department. HR manager, marketing manager, IT manager. Different work areas, but they came together in order to achieve the group, a certain task. That is your cross function. Virtual. Nowadays, physically dispersed, geographically dispersed location, when the people come together, through virtual method to achieve certain goal is called as the virtual team. Like on an academy, there are number of the educators, people working from different locations, but they have all one purpose. Focused. This is your PYQ being asked in exam. What is this is PYQ for PSU as well. What is focus? Focus का मतलब होता है when they are being formed to resolve one specific issue. एक इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए जब ग्रुप बनाया जाता है उसे हम कहते हैं फोकस ग्रुप. लेट्स से कोविड के दौरान कोविड की मेडिसिन बनाना है, तो मेन पर्पस क्या है? मेडिसिन बनाना है. इतना ही काम है आपका स्पेसिफिक, उसे फोकस, उनका फोकस वही है. ठीक है. Who these people interact with each other, share the opinions and attitude, and they have the facilitator as well. एक फैसिलिटेटर होंगे जो एक ग्रुप के मेन फोकस पे ध्यान देंगे. स्पेसिफिक इशू. सजेशन टीम, टेम्पररी टीम होते हैं. These are temporary in nature. For let's say new product have to be launched, there would be a team introduced to give the suggestions on this new product. That is suggestion team. Temporary team whose member work on specific analytical assignment such as how to cut cost or raise the productivity. Right? कुछ भी हो सकता है. Suggestion देना किसी पे भी. ठीक है. अब why people join the group? This is your PYQ being asked in exam. Why the people join the group? Security. मैं किसी भी ग्रुप को क्यों ज्वाइन करती हूँ कि सिक्योरिटी है. सेल्फ डाउट रिमूव होते हैं. सो मुझे नहीं पता यूजीसी नेट की प्रिपरेशन क्या करनी है, तो मैं जाके किसी ग्रुप को ज्वाइन कर दी. तो वंस आई ज्वाइन, माय डाउट्स गेट क्लियर, आई फील मोर स्ट्रॉन्गर, आई फील दैट आई एम प्रिवेंटेड फ्रॉम थ्रेट. Esteem. So it increases my esteem as well when I'm a part of the group. So when you are a part of an academy or a Padai app or Lakshmi ma'am's group, somewhere you feel happy that so I'm not praising myself, but there is always an esteem associated. Affiliation, you regularly enjoy with the people, regularly interact with the people, so you get that recognition, you get that love, affection,
understanding. Power, you feel power. Collective leadership is there. Identity. So I usually keep on giving the example of Times of India or an academy, because being associated with this good brands have actually given me an identity. So if others are praising, oh wow, she was working with Times of India, oh wow, she was working, it gives a feeling of identity or feeling of praise. Huddling, sometime informal great get together is required. तो इनफॉर्मल इंटरेक्शन के लिए भी हम ज्वाइन करते हैं ग्रुप. यहाँ तक के everyone understood. Now we would be moving to the properties of the group, जहां हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस, साइज, कोहेसिवनेस एंड डाइवर्सिटी. ओके, एक ही जन है क्या, एक ही है क्या क्लास में? प्लीज हैव सम, मेरे को रिप्लाई करते जाओ, ठीक है. Now there are different properties associated with the group. Rules जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी. नॉर्म्स क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड होते हैं. मैं किसी ग्रुप का पार्ट हूं तो मुझे उस ग्रुप के नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो करना है. स्टेटस होता है. साइज, कोहेसिवनेस, अट्रैक्टिवनेस, डाइवर्सिटी भी होती है. डाइवर्जन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं. मेल, फीमेल, people from different religion, people from different location. Diversity is also a characteristic or property. पहला role. What is the role? A set of the expected behavior pattern when you are occupying certain position. उसे हम role कहते हैं. Role model, the term, who has given the term role model is your PYQ. ये PYQ है, पूछा जा चुका है. Robert K. Merton is a person who has actually given the term role model. What is role model? मेरे लाइफ में मेरे लिए कोई रोल मॉडल होगा, आपके लाइफ में कोई और होगा. सो यंगर पीपल व्हेन दे यूजुअली ट्राई टू eliminate or they try to copy the behavior of someone senior, that person is called as the role model. Elements of role expectation, these definitions are very 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 important, right? Somewhere one or other way all the definitions has been asked in exam. Expectations, being a teacher, what people expect from me as a teacher, how others, मेरी expectation नहीं, how others believe that a person should behave in the given role. So as in students, as in society, what they expect me as a teacher should behave. As a teacher, you should not have any informal interaction with anyone. You should have very you can say formal thing. So that is what the expectation is. Being teacher, you should take care of your student, चाहे वो स्टूडेंट खराब हो, बुरा हो, अच्छा हो, वीक हो, इंटेलिजेंट हो, सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपका काम है, बिकॉज आप टीचर हो. सो दैट इज द एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद द रोल बाय अदर्स. स्टीरियोटाइप्स क्या होता है ना कि कई बार हम किसी रोल से रिलेटेड एक जनरलाइज्ड या किसी भी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ओवर जनरलाइज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सीडेंट हो गया, एक एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, एंड इन दिस उस एक्सीडेंट प्लेस पे, ठीक है, एक्सीडेंट, देयर आर नंबर ऑफ द पीपल स्टैंडिंग एंड सर्कलिंग दैट पर्सन जहां एक्सीडेंट हुआ है, एंड देयर इज वन डॉक्टर. लोग चिल्ला रहे हैं डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है, और ऑफ सडन पता चलता है एक पर्सन वहां डॉक्टर है. तो वो डॉक्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस है कि भैया चाहे वो स्पेशलाइजेशन उसकी अलग हो, वो हम लोग क्या करते हैं कि फिजिशियन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, राइट, गायनिक होते हैं, ये सब अलग होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं. बट बीइंग अ डॉक्टर हम एक जनरलाइज्ड बिलीफ बना देते हैं दैट वो तो डॉक्टर है ना, उसको तो सब पता होना चाहिए, उसके पास उसकी मेडिसिन. मतलब हम डर्मेटोलॉजिस्ट को भी पूछ लेते हैं, हम फिजिशियन को भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, फिर वो हमें रेफर करता है कि नहीं आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ. हम फिजिशियन को भी हार्ट से रिलेटेड इश्यू पूछ लेते हैं, फिर वो बोलता है नहीं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ. सो वी हैव दैट स्टीरियोटाइप दैट इफ द पर्सन इज अ डॉक्टर ही शुड नो एवरीथिंग अबाउट हिम. स्पेशलिस्ट के बारे में हम बाद में सोचते हैं. दिस इज कॉल्ड एज रोल स्टीरियोटाइपिंग. Means when you generalize certain behavior for role, that is called role stereotype.
A stereotype is an overgeneralized belief about a particular category of people. It is an expectation that people might have about every person or a particular in group. उस ग्रुप में सारे डॉक्टर के लिए आपका जनरलाइज थिंकिंग हो सकती है या एक पर्सन के लिए भी. One assumes the stereotype is true for each individual person. These two lines are very, very, very important asked in PYQ. Now understand this. IIM का अगर वो स्टूडेंट है तो हमारा जनरलाइज्ड एक्सपेक्टेशन क्या होता है? IIM से इसका पैकेज तो बहुत भाई होगा, IIM से है ये तो स्टार्टअप ही बनाएगा. सो दिस इज व्हाट द स्टीरियोटाइप. जरूरी नहीं है ना कि सारे IIM से आने वाले लोग स्टार्टअप ही स्टार्ट कर रहे हैं. नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? बट वी हैव दैट स्टीरियोटाइपिंग. तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करने वाले हर इंडिविजुअल को हम बिलीव करते हैं कि इसकी कैटेगरी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही होंगे. रोल आइडेंटिटी. व्हाट इज रोल आइडेंटिटी? आई एम गिविंग ए सिंपल एग्जांपल. HR डिपार्टमेंट क्या करते हैं? HR डिपार्टमेंट रंगोली बनाते हैं. कितने लोगों को सुना है ये बोलते हुए? HR डिपार्टमेंट क्या करता है? रंगोली बनाते हैं. What is this रंगोली बनाना? What is this? What is this? It is a kind of role identity. HR डिपार्टमेंट का काम, हम यूजुअली HR डिपार्टमेंट को केवल रिक्रूटमेंट से जोड़ते हैं. क्या काम है तुम्हारा? कॉल करना कैंडिडेट को और बुलाना. हम यूजुअली केवल, क्योंकि वो आइडेंटिटी बन गई है. दैट इज व्हाट द आइडेंटिटी इज. सो व्हेन सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न becomes the identity of the role, it is called as the role identity. Is this clear? जैसे आर्मी ऑफिसर है तो आप आर्मी ऑफिसर हो, आपको फिट होना जरूरी है. आप फादर हो तो आपको अथॉरिटी लेना जरूरी है. तुम मेरे फ्रेंड हो ना, यू आर माई फ्रेंड. पॉलिटिशियन करप्ट? यस, हर पॉलिटिशियन करप्ट नहीं होगा. वेरी गुड. सो दैट इज द रोल आइडेंटिटी, राइट? हाँ, ग्रुप डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? नंदिनी, आप लोग कहाँ थे? लेट ज्वाइन किया क्या? डायनामिक्स का मतलब होता है इंट्रैक्शन, फेस टू फेस इंट्रैक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पीपल विद इन द ग्रुप इज डायनामिक. क्या नहीं समझ में आया? आई विल एक्सप्लेन प्रीति इन लास्ट. ग्रुप टीम और ग्रुप वर्क एक बार में समझ में नहीं आएगा, आपको उसे रिपीट करना पड़ेगा. रोल परसेप्शन यानी जब हम MBA कर रहे थे ना, सबका ये परसेप्शन रहा होगा, क्योंकि हमें उस टाइम नहीं पता होता है परसेप्शन. तो मेरे फादर का या मेरा भी खुद का ये परसेप्शन था MBA, बिकॉज माय फादर वाज वर्किंग एज एन वर्कर. वो एक वर्कर थे, ठीक है, फैक्ट्री में ही वाज एन वर्कर. तो वो जो अपने बॉस या मैनेजर्स को देखते थे, दे वर सिटिंग इन द केबिन एंड doing some paperwork and so on, dealing with the huge big responsibilities. So this is what he has seen. He don't know और उनकी क्वालिफिकेशन somewhere he must be knowing. ऐसा हम भी परसीव करते थे पहले, हम भी रखते हैं कि जब मैं MBA करके मार्केट में जाऊंगी, या मेरे फादर भी ऐसे बोलते थे, ये तो MBA कर रही है, इसको इजीली जॉब मिल जाएगा 20-25 हजार का. वो हमारी भी परसेप्शन हो जाता. लेकिन हम जब एक्चुअल मार्केट में उतरे, क्या पता चला? कोई 6,000 की भी नौकरी नहीं दे रहा. MBA तो गली गली में घूम रहे, 6,000 की भी नौकरी नहीं दे रहा है. आप रिक्रूटर हो, फ्रेशर हो, 8,000 मिलेंगे. अब बढ़ चढ़ के तो 20-22 पे आ गया. लेकिन जब फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड, इट वाज लाइक फ्रेशर. आई सेड यस. रिक्रूटर, आई सेड आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस. 6,000 रुपए, 8,000 रुपए. इवन सो सी, आई हैड एन कैंपस, एक कैंपस, 2-3 कैंपस में था, बट आई वाज नॉट एबल टू ज्वाइन बिकॉज माय फादर हैड दैट स्टीरियोटाइपिंग के. थोड़ा सा मेरे फादर उस टाइम के लिए ये थे कि हम बाहर नहीं भेजेंगे, बेटी को बाहर नहीं भेजेंगे. तो दैट वाज द थिंग कि नहीं भेजा, तो अलग अलग सिटी में जाके जाना था. माय फादर वाज नहीं. तो इट वाज लाइक, फिर उसके बाद में जब मैं HDFC, इवन HDFC में मैं गई, मैं फ्रेशर थी. HDFC में जो उन्होंने मुझे ऑफर किया, आई वॉज वेरी गुड एट, वो खुद ही कह रहे इंटरव्यू बहुत अच्छा है, कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, बट हम 8,000 के ऊपर नहीं देंगे. आई सेड सर, इतना दूर से आना, इट वॉज वेरी फार फ्रॉम माई होम. एंड ही वॉज नो, हम 8,000 से नीचे नहीं देंगे. सो जो हमारी परसेप्शन थी ना कि इजी जॉब मिल जाएगा, केबिन में बैठेंगे, वो चकनाचूर हो गया. वो तो ऐसे लगा कि भैया क्या ही हो गया, क्यों ही, मतलब यही MBA करके भी यही करना था तो BBA करके ही कर लेते.
या ग्रेजुएट को भी उतना मिल रहा था. सो दैट इज व्हाट रोल परसेप्शन. हम परसीव कुछ और करते हैं और काम कुछ और करना पड़ता है. दैट इज द रोल परसेप्शन. ठीक है, हर एक रोल से रिलेटेड कुछ परसेप्शन होता है. अब जैसे जॉब मिला, ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में, ऐसे नहीं होता है. हाँ, रियल लाइफ में नहीं मिलता है ना. अब क्या होता है कि मैंने अपना ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पे मुझे एज एन रिक्रूटर मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट कंसल्टेंसी में. तो कंसल्टेंसी में आई वॉज इनटू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी के लिए हायरिंग करनी थी. सो इट वॉज लाइक रिक्रूटर है, तो मैं आई वॉज सो कॉन्फिडेंट. कॉलेज से निकलने के बाद में क्या है, रिक्रूटमेंट ही तो है. आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ऐसे आएंगे मेरे कैंडिडेट. सो दैट वाज द परसेप्शन फॉर मी कि मैं तो लाइन लगा दूंगी. इंटरव्यू में माय बॉस, जिस जो मेरा इंटरव्यू भी ले रहे थे, वो भी कह रहे थे यू आर गुड एट कम्युनिकेशन और दिस एंड दैट. लेकिन एक्चुअली जब मैं काम करने बैठी, 1 month I was sitting at zero. No candidate appeared. So my boss called me in the room, जो कंसल्टेंसी रन कर रहे थे, और ही वाज लाइक, Lakshmi, it's zero. You have not called even one candidate. I was with the full confidence. No, sir, करेंगे, बिल्कुल होगा. Next month तो I will nail it. So my boss was like, कुछ हो ना हो, confidence तो कूट कूट के भरा हुआ है. So that is what the role perception is. कि हम जो व्यू करते हैं ना, हम जो इंडिविजुअली व्यू रखते हैं किसी चीज के बारे में, हम उस सिचुएशन में वैसे एक्ट नहीं करते. ठीक है, सो दैट इज द रोल परसेप्शन. बिहेवियर. सो बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय बेसिक आइडियोलॉजी, कि क्या बिहेव करना है किसी सिचुएशन में. ठीक है, दैट इज योर बिहेवियर. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबके साथ में अपनी अपनी स्टोरी हुई होगी. आई होप सभी ने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में किया होगा, राइट? सबकी अपनी अपनी परसेप्शन. यस, चलो आगे चलते हैं. रोल कॉन्फ्लिक्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया था. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अगेन. रोल एम्बिगिटी आई हैव एक्सप्लेन यू. रोल मॉडल आई हैव एक्सप्लेन यू. अब फॉर्म्स ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये ना आपके जो रोल सेट है इससे एसोसिएटेड है. इंटरसेंडर कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रासेंडर कॉन्फ्लिक्ट, इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट. व्हाट इज इंटरसेंडर? टीचर. ठीक है, जब मैं टीचर हूं, मैं मेंटोर हूं, मैं इवैल्यूएटर हूं, मैं गाइड हूं, मैं इंस्ट्रक्टर हूं, राइट? जब ये रोल सेट के अंदर मेंटोर इवैल्यूएटर, दो रोल्स हैं, मेंटोर इवैल्यूएटर. मेंटोर रोल कहता है आप पर्सन की स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ बताएंगे, उसको हेल्प करेंगे. इवैल्यूएटर कहता है, इवैल्यूएटर रोल कहता है कि कमियां निकालो, उसकी नेगेटिव थिंग उसको बताओ, और उसको बताओ कि आपसे ये एक्सपेक्टेड था, आपने ये किया नहीं, तो आपके ये नेगेटिव चांसेस हैं. लेकिन मेंटोरशिप कहती है कि आपको उससे डेवलप करना है, हेल्प करना है, ये नेगेटिव चांसेस ना आए. तो जब ये दो रोल्स में इंटरसेंडर, दो के बीच में इंटरसेंडर, when occurs when incompatible expectation or demands are communicated by two or more members of the role set. ठीक है, दो और मोर रोल सेट के अंदर में, एक रोल सेट के अंदर दो से ज्यादा रोल्स के बीच में आने वाला कॉन्फ्लिक्ट इज इंटरसेंडर. इंट्रा, जब सिंगल रोल से होता है. जैसे एज एन टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं उस हर एक स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करूं. लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बायसनेस होगा, या मैं पर्सनली उस बच्चे से खुश नहीं हूं, कुछ ना कुछ मेरे इसमें चल रहा होगा, तो मैं उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रही हूँ. तो एज एन टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अच्छा ट्रीटमेंट, उसको अच्छे से पढ़ाना है, बट मेरी बायसनेस वो मुझे करने नहीं दे रही है. तो जब एक सिंगल रोल से कॉन्फ्लिक्ट आता है, दैट इज इंट्रासेंडर. इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट इज अलग अलग, 1 2 3 4. ठीक है, इसे हम इंटर रोल बोलते हैं.
इंटरसेंडर का मतलब क्या होता है? टू और मोर रोल सेट के अंदर आने वाली। डिफरेंट रोल, यहाँ पे टू और मोर, यहाँ पे टू और मोर है, यहाँ पे है मेंबर्स, सारे ही मेंबर्स जितना उस रोल के अंदर में है, सारे मेंबर्स से जब इनकम्पैटिबिलिटी आती है तो हम उसे कहेंगे इंटर रोल, विद इन दी रोल। क्लियर? ओके। दूसरी प्रॉपर्टी है नॉर्म्स। अब इसको हम आज नहीं करेंगे, पेशेंस है एवरीवन। इट्स 12 o'clock, मेरे पास में और थोड़े से काम है। बहुत हो गया, कैसे सिलेबस हो गया, बहुत हो गया। तो मेरे पास अभी इतनी कैपेसिटी है कि मैं 1 घंटा पढ़ा सकती हूँ, अगर मेरे पास काम नहीं होते तो मैं 1 और घंटा पढ़ा देती आपको। ठीक है, तो अब आगे के लिए आप इसके लिए तैयार रहिए, 2 घंटे 3 घंटे। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे का क्लासेस मैं ले सकती हूँ गैप दे दे के, बट वी नीड टू फिनिश अप दिस सिलेबस, राइट? सो जस्ट लेट मी चेक इसके बाद क्या पेंडिंग। It's very lengthy actually. We'll try to finish up this group concept by tomorrow. कल भी हम 2 क्लासेस लेंगे, ठीक है, इसको खत्म करेंगे। डन? चलो, थैंक यू सो मच। Give your feedback after the session.